Mukesh ji, good afternoon. Thank you for joining early. Good afternoon, Abhishek. How are you? I'm good, sir. How are you doing? Fine. So, just in case you're free and if you have any questions that you think I might be able to answer, please feel free to use this time, sir. We have about 12 minutes. I can definitely, try and help you out just in case you're stuck with anything with respect to data. This time I have not any questions. I Okay. have joined this session after a long time. Hmm, 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 hmm. Okay, okay, okay. So basically, sir, just to give you a quick recap, हमारा एक internal website है formula.cytbox.com. So वहाँ पे बेसिकली हमने क्या करते हैं कि डीएनईज लोग के लिए सारे फॉर्मूलाज का छोटे छोटे वीडियोस बना के रखते हैं हम यहाँ पे. And during this MIS Saturdays, basically, we go through, all of, मतलब go through those formulas in a sequential order, जितना भी कवर हम कर सकते हैं. और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन रहता है उसके रिलेटेड तो वो क्वेश्चंस जनरली हम ले लेते हैं. Okay. These are basically free sessions for anybody who wants to join. Himanshu, good to see you here. Welcome. So the same offer goes to Himanshu as well. Since you have joined early, if you have any questions that you think I might be able to answer, please feel free to ask me. हेलो. Hello, yes, Himanshu. हाँ सर, वो मैं जस्ट ज्वाइन करके देख रहा था. अच्छा अच्छा. मुझे लगा चालू है. हाँ, तो ये अभी हम चालू करेंगे in the next 10 minutes. So हाँ, we'll okay. start with, we will basically do these functions today. Okay. Len, trim, upper, lower, proper, join, text join, unique, concatenate, write, text, regex match, and regex extract. So I'm not sure if we'll be able to cover all of this today because regex match and extract, again, they are really big, functions, and they're really, complicated. So we'll basically do the basics of it. But yeah, let's see how much can we cover today. Okay, let me pause the recording for now. I don't think I can pause.
So we have this particular website, formula.coitbox.com. Those of you who are part of, I think Yashwant, you have asked me a question on the DME group, why you are not able to access it. So this particular website, formula.coitbox.com, is basically for our internal members only. And if you are already a member of Tech Mastery Advance or Tech Alumni, then maybe you have logged in from a different email ID than the one that has been authorized. ठीक है ना, जिस आईडी पे हमने आपको ऑथराइजेशन दिए हैं उसी आईडी से ये वाला वेबसाइट खुलने वाला है. अदरवाइज हमारा जो ये MIS सैटरडेज होते हैं उसका जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे आप वो देख सकते हो डेफिनेटली उधर जाके. So since there aren't any questions, I'll take this opportunity to talk a little bit about the DME program that we have. So I actually have another bigger workshop for all database management experts, and a lot of the people from the DME group are already part of it. So in that, basically what happens is I take 7 4-hour sessions जिसमें मैं काफी सारा चीज कवर करता हूँ which are appropriate for database management experts or MIS executives or whatever. Basically it's hardcore Google Sheet come to some extent Excel as well, formula kind of a workshop. So we start with understanding the importance of flat file structures. Generally I have noticed most of the times people make mistake in creating a structure in which they are documenting their data. अगर आपका जो data documentation method है अगर वही गलत है then automatically your report creation becomes extremely difficult and cumbersome. So first it is important कि आपका जो data structure है वो एक simple flat file structure मतलब a column on top, unique column headers, and your data should be growing ऊपर से नीचे तक, not left to right. ठीक है? So if you have that structure in place, I would say 30% of the battle is won. ठीक है? Then once you have that in place, then we talk a little bit about Google Sheet protection and sharing. We talk about the G Suite administration bit. We have also a host of important formulas that we talk about. So all of these formulas are something we feel that every DME should know because they are going to help you sort of learn, not learn, but rather automate a lot of things. I have placed array functions and query right on top of this list. The rest of them are not really in any order. Those of you who do not know how to convert your formulas into arrays, please focus on some resources on YouTube. There's also a MIS Saturday video which is on how to put out which is basically on how to make normal formulas into array formulas. ठीक है ना? तो वो चीज I'll try and see if I can find that link. I'll share it in a bit also. आपको डेफिनेटली देखना है अगर आपका फॉर्मूलाज एरेज में नहीं है तो आपका गूगल शीट 100% स्लो होने वाला है. ठीक है? So just convert them into array. Query is a very powerful function. We have done a small workshop on that as well. These are all available on Sanjeev sir's channel. So maybe I will put the channel this thing also on the chat here. 1 second. So I'm putting this in the chat here. Okay. This is the channel basically. This is Sanjeev sir's YouTube channel. You can access it by this link also. Okay, or you can simply go on your address bar and you can type itbx.in/yt, so you can reach his channel, and under this you will have different playlists. So within these playlists you can look at the MIS Saturday playlists.
among obviously a lot of other playlists here. And here you can get all the workshops that we have done. So array formulas, how to use pivot tables, how to create a simple workflow. This last DME workshop, we were talking about pre-filled form links. I see Sana here. So probably the next workshop that we do, after that you can probably watch this, or maybe you can already watch it if you like. I think this will really automate a lot of things for you guys. Just watch this video, because the formulas that I'm using are basically array formulas, VLOOKUPs, and pre-filled form links. Okay, but it's the application of all of them together that can really help you create a very strong workflow. Like you can have a list of all your tasks. You can click on a button, and then that particular task will disappear, because the action of clicking on the button indicates that the task is done by the user. So you have an active list of tasks only. So that is something that I've explained in this particular video. So documenting and cleaning dates, again, simple things like multiplying 1 with your existing dates, or an isDate function. Those things can help you there. If function, like I keep saying, the solution to all problems start with an if. So yeah, if function, how to use VLOOKUPs, Google Forms add-ons. So those of you who have been benefited with especially Formule and Autocrat, you can definitely look at this. It can automate your approval systems, your automated emails. It can even help you create documents online, like PDFs and certificates and all of that. All of that is free. It's available right here. Okay. What else did we do? So we also created a small little Google form, okay, which can be embedded in a Google site, okay, and that can act like an FMS for, let's say, your security guards who are going around your campus at certain time. Okay, you can tell them that these are the times when you need to go to this particular location, take a picture and upload it on a Google form. Okay, if the person doesn't do it, then you can get like a report that this time the security guard has not done it. And you can also create a you can also take a basically install an app from the App Store, which will automatically timestamp the image with the actual timestamp and the the longitude and the latitude. Basically the geotag information bhi aa jata hai. There are multiple apps available online for free, so you can install that on his phone, so that from which place at what time he's clicked that picture, that gets timestamped on the photo. He will have to be really smart to actually bypass that. It's not like he can't, but then if you have such a security guard, then he deserves to be in a different position if you have security guards like that. Anyways, then I shared some Google Sheet ka tips and tricks. So acha, macros pe bhi thoda sa baat kiya tha maine. These are again basic, how to record macros, and how you can see the script, and maybe you can start editing them. This is like really the first step of learning to script. And then date related formulas. The rest of these formulas that are all here, these are all again part of the formula.coit box ka hamara jo internal page hai wahan ka. Anyway, so how many people do I have? I have okay, 10 people so far. Let me just start off. Okay, abhi tak any questions so far? I was talking about the DME course. Maybe I can talk about the DME course some other time. This is basically a 7-day course, so I'll talk about it some other time. But if there are no questions, let's dive right in. We'll start with the len function. Okay, how many of you know the len function? You have to type me in the chat, please. आपको len function क्या करता है पता है? Simply put, the len function will give you the number of characters that are there in a cell. ठीक है?
Let's have a look at this. Hello guys, this is Damini from CUIT Works. So today we are learning len function. A len function basically work करता है text पर and ये count करता है कि कितने letters हैं हमारे किसी भी text में name में कि total letters कितने हैं. ये len means होता है length, ये length count करता है और इसमें अगर ये space को भी count करता है, अगर कहीं पे किसी भी name में space है तो ये वो भी count करेगा. यहाँ पे इसका स्ट्रिंग जो होता है वो होता है लेन एंड टेक्स्ट. ये नंबर पे वर्क करेगा नहीं, ओनली टेक्स्ट पे यूज होता है. जैसे अब टू टाइप्स के नेम्स इसमें दिए हैं. यहाँ पे रॉन्ग नेम्स में क्या है कि इसमें आगे स्पेस है एंड पीछे भी इसमें स्पेस है, और राइट नेम में क्या है कि एक प्रॉपर वे में इसमें नेम लिखा हुआ है. तो अब मैं टू वेज में लेन फंक्शन यूज करूँगी. लेन फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ A3 से. A3 सेल रेफरेंस को लिया है और एंटर किया. अब आप यहाँ देखोगे इसमें लेन, इसका लेंथ क्या है. अभी हमें लेटर तो बस 3 ही दिख रहे हैं इसमें कि 3 ही लेटर है A B A, और तो इसमें कुछ है नहीं. बट इसमें क्या है कि इसने स्पेस भी काउंट किया है. अभी आप देख रहे हो जब मैंने इसको हाईलाइट किया तो इसमें आगे का भी स्पेस लिया है उसने और पीछे का भी स्पेस लिया है, तो इसलिए इसका कितना हो गया, टोटल लेंथ कितनी हो गई 11. इसमें 11 लेटर्स हैं. और यही फंक्शन मैं लगाती हूँ B3 से. इससे मैं ये फंक्शन लगाती हूँ ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर करती हूँ. तो अभी आप देखोगे सिर्फ 3 लेटर है क्योंकि इस पे मैंने यहाँ किया डबल क्लिक किया, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, बस A B A नेम है, बस 3 लेटर्स है. तो अब ये आप डिफरेंस देख रहे हो. जब भी कभी ऐसा कंडीशन होता है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि लेंथ कैलकुलेट करने से पहले हमें उसको देखना होगा कि वो नेम सही है या नहीं है. क्योंकि अभी यहाँ से हम लेंथ निकाल रहे हैं, पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नेम सही है, बस 3 लेटर है. इसका जो फॉर्मेट है वही ऐसा किया है, कुछ मिड में है, कुछ लेफ्ट में है, कुछ राइट में है, कुछ सेंटर, इसका ऐसा फॉर्मेटिंग लग रहा है. बट जब हमने लेंथ उसका कैलकुलेट किया तो लेंथ में पता चला कि लेटर तो बस 3 है, बाकी इसने स्पेस को भी काउंट किया है. तो बेसिकली ये लेंथ काउंट करता है. मैं यहाँ पे फिर से एक बार लगाती हूँ. मैं B3 सेल रेफरेंस को लेके करती हूँ. लेन B3 को लिया. अब यहाँ पे देखोगे अब 3 आया है. मैं सभी का कर देती हूँ. तो यहाँ पे इसने सभी का लेंथ बता दिया कि इसमें 6 लेटर्स हैं, इसमें 7 लेटर्स हैं, इसमें 9 लेटर्स हैं. तो इसने टोटल लेटर्स बता दिए कि टोटल लेंथ किसी भी नेम की, किसी भी वर्ड की कितनी है. यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करती हूँ. लाइक मैंने यहाँ पे किया अम्ब्रेला, तो अब यहाँ देखोगे ये चेंज हो गया. अम्ब्रेला में टोटल लेटर्स कितने 8. तो यहाँ पे टेक्स्ट में इसने लेंथ को काउंट कर लिया है. ये डायनामिक वे में हो जाएगा. और ये अगर आपको चाहिए कि नहीं डायनामिक नहीं करना है, बस एक ही लेटर का चाहिए, तो जैसा मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है कि इसको आप F4 से फिक्स कर सकते हो. F4 से जब आप फिक्स करोगे और इसको कहीं पे भी आप ड्रैग करोगे तो आपका यहाँ पे ये 8 ही शो होगा. आई होप ये सभी को समझ आ गया होगा लेन फंक्शन. Okay, so I hope that was clear. मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा जरूर कि I spotted a small little error. दामिनी said that ये बस टेक्स्ट पे काम करता है, ये नंबर्स पे काम नहीं करता है. I did not know that, so I checked it myself. But I'm seeing it is working on numbers as well. ठीक है ना. यहाँ पे अगर मैं ये लेन फंक्शन को मैं नीचे अगर ड्रैग करता हूँ, so if I type 1, it is taking it. So any text, it is working. So it should work both on text as well as numbers, which I can confirm. Also, अगर आपको इसको array में डालना है, it's a simple thing. आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे A1 से लेके मान के चलिए कि 6 तक आपको array में convert करना है. So you can simply do colon and A6 and press Ctrl Shift and enter. Hit enter. Delete the rest of the formulas because the formula needs to spill. So once it spills, it will give you the entire thing in one single formula. So that's how you can convert something in an array, which is what I was talking in the beginning. ठीक है. So if there are no questions on this, हम आगे चलते हैं.
सर एरे वाला वापस बताइए ना। एरे वाला वापस बताएं। देखो एरे के लिए सिंपली क्या करना पड़ता है, जनरली हम एक सेल का रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। एरे में पूरा जितना भी जहां से लेके जहां तक आपको काम करना है, मतलब जैसे जहां से लेके जहां तक आप फॉर्मूला ड्रैग करते हो, ठीक है ना, उसका पूरा का रेफरेंस आपको डालना पड़ता है, ठीक है। सो लेट्स से I'm going to give you another example. Let's say these are all different price, ठीक है। And then let's say I'm having different amounts, ठीक है। लेट्स से दीज आर ऑल डिफरेंट अमाउंट्स। तो अगर मुझे यहाँ पे रेट्स चाहिए, तो रेट्स के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई दिस प्राइस विद दिस अमाउंट हियर, सॉरी विद द क्वांटिटी हियर, ठीक है। सो नॉर्मली आप क्या करोगे, यू विल डू दिस इनटू दिस एंड यू विल हिट एंटर एंड you will drag this formula down for every single cell. But what happens is, in a array, what you can do is, in a single formula you can write this entire thing. So I'm writing it here separately, okay, so that you understand the difference between this cell and this cell here. So I will do something like equals to, I will take this entire column because I need the whole thing multiplied by this entire thing, okay. And now what I will do is, I will do control shift and enter, ठीक है। सो ये एरे फॉर्मूला का बेसिकली एक शॉर्टकट है। आप इसको नॉर्मली इक्वल्स टू एरे फॉर्मूला ओपन ब्रैकेट फिर B1 से लेके B6 मल्टीप्लाइड बाय C1 से लेके C6 भी कर सकते हो, एंड देन यू हिट एंटर। सो यू सी यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स एज दिस। हाउएवर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू आर नॉट हैविंग अ formula in every single cell. The beauty of doing this is nobody will be able to change it. Nobody will be able to overwrite it. Let's say 4343. Somebody for some reason doesn't like the number 4343. They want it to be 4340, right? 4340. Okay, it will not let you do it. The entire column will disappear. ठीक है। सो इट इज ऑल्सो लाइक अ सिक्योरिटी फीचर दैट यू कैन यूज। एक और चीज जो होता है, since this is only a single cell formula, it saves you a lot of resources. Google Sheet काफी फास्ट चलता है अगर आप आपका फॉर्मूलास एरेज में कन्वर्ट कर लेते हो तो। ओके, ठीक है, या ऑलराइट। नेक्स्ट वी विल डू a trim function. Hello guys, this is Damini from CEOIT Works. So today we are learning trim function. Trim function basically यूज होता है टेक्स्ट के लिए ही, और trim क्या करता है, जो भी अनवांटेड स्पेसेस होते हैं वो उसे रिमूव करता है। चाहे किसी भी टेक्स्ट के आगे स्पेस है या फिर किसी भी टेक्स्ट के पीछे स्पेस है, तो ये ट्रिम फंक्शन जितना भी स्पेस होता है उन सभी को रिमूव कर देता है, ट्रिम करता है। अभी आप यहाँ देखोगे ये वाला नेम है ABA। अब आप इसमें देखोगे यहाँ पे भी स्पेस है और आगे भी स्पेस है। एंड अब जो करेक्ट नेम होता है वो क्या होता है, वो इस सीक्वेंस में होगा। और अगर आप कुछ फाइंड भी करोगे, जैसे आपका बहुत ज़्यादा डेटा है और आप उसमें डेटा में से फाइंड करते हो कि इस वाले पर्सन का ये वाला डेटा आ जाए, तो वो डेटा फाइंड हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इन सभी नेम्स में स्पेस ही इतना है। तो जब आप कुछ फाइंड भी करोगे तो उस कंडीशन में क्या करोगे, क्या वही सिर्फ नेम ही लिखोगे और कुछ इससे ज़्यादा करोगे नहीं इसमें, तो वो यहाँ पे फाइंड नहीं करेगा। आपको लगेगा कि शायद इस पर्सन का डेटा है नहीं, और अगर आपको पता भी हो कि इस पर्सन का डेटा है तो फिर आप यही सोचोगे कि ये फाइंड क्यों नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे। और नेम को करेक्ट करने के लिए कि ये सही है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे पहले से ही एक रेंज बना ली है जो मेरे करेक्ट नेम्स थे, तो इसको मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पता चल जाएगा कि कौन सा नेम सही है कौन सा नेम गलत है। जो भी फॉल्स होगा उसका मीन्स ये होगा कि उसमें कुछ ना कुछ या तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा या फिर स्पेस मिस्टेक होगा। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इज इक्वल करती हूँ राइट नेम से, मीन्स इससे B3 से, तभी जो मुझे इसके अगेंस्ट आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि इस नेम में कोई भी स्पेस नहीं है, ना तो आगे स्पेस है नेम के ना ही पीछे स्पेस है।
और अब ये वाला नेम देखोगे, इसमें आगे भी इतना इतना ज़्यादा स्पेस है और पीछे भी स्पेस है, तो इसलिए इसने आंसर क्या किया, फॉल्स, कि ये वाला नेम इससे मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए गलत है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे ट्रिम फंक्शन। ट्रिम के लिए ट्रिम इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे टेक्स्ट आया, क्योंकि ट्रिम बेसिकली वर्क भी टेक्स्ट पर ही करता है, ये नंबर्स में कोई भी स्पेसिफाई नहीं करेगा। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस नेम को सिलेक्ट करती हूँ और ब्रैकेट क्लोज करती हूँ, एंटर करती हूँ, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस में आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे, अब मैं इसको मैच करती हूँ करेक्ट नेम से, जो ट्रिम में आंसर आया है इसको मैच करती हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे ये ट्रू है, क्योंकि इससे स्पेस रिमूव हो गया और ये वाला नेम दोनों मैच हो गए, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू। और मैं इन दोनों को अगर मिलाती हूँ तो इसका आंसर क्या आया था, फॉल्स, जैसा मैंने आपको दिखाया था। तो ट्रिम फंक्शन अनवांटेड स्पेसेस को रिमूव करता है। मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ। अब आप यहाँ देखोगे जितने भी नेम्स थे, इन सभी के आगे किसी के आगे स्पेस लगा हुआ है, कहीं पे पीछे है। अब यहाँ देखोगे तो ये सारा एक सीक्वेंस में आ गया। यहाँ पे ना तो कोई आगे स्पेस है, ना ही इसमें कोई पीछे स्पेस है। आई होप कि सभी को ट्रिम फंक्शन समझ आ सभी को ट्रिम फंक्शन समझ में तो आ गया लग रहा है, but I think we'll have to relook into this video, because again in this video Damini says that trim function will not trim anything that has numbers in it. So let me have numbers, so space, numbers, spaces, some more text, some more spaces, and let's say some more text. Okay, as per my understanding, it should trim this, because more than one spaces it gets trimmed irrespective of number or text. So equals to trim, this cell here, it trims it. So I will update this video, don't worry, but don't worry, trim का ऐसा कोई limitation नहीं है कि between texts or numbers it doesn't differentiate. अगर एक से ज्यादा space है, ठीक है ना, in an unwanted place, उसको ये remove कर देगा. So I can also have like space 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 a b c 1 2 3 4 blah blah, and then I can have double spaces here, more than one set of, more than one space. Let's say I have some number here and then again some more this thing. So if I drag this string function down, ठीक है, beginning से space उसने हटा दिया, ठीक है, और फिर उसने end का भी जितना space था, वो end का भी यहाँ पे जो 3 के बाद जितना characters था उसको भी उसने हटा दिया. How can we very quickly check this? Can someone give me an idea? देख के ही पता चल जाएगा इसको कि इसने हटाया कि नहीं end का spaces. Here we can use a len function equals to len open bracket this cell enter, और इसको हम इसको right पे drag कर लेते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे it has 22 characters और यहाँ पे it has 13 characters. अगर लास्ट से उसने रिमूव किया है कि नहीं, तो इसके लिए आई थिंक वी विल जस्ट हैव टू प्रोबब्ली ड्रैग दिस वंस मोर, रिमूव एवरीथिंग एल्स बारिंग whatever is there in the last. So let's do something like this. इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ. 4 के बाद let's have some more spaces here. Hit enter. इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ. So this is saying इसका len is 1. 1 second, ये 3. इसका len 1 कैसे है? इसने शायद स्पेस लिया नहीं. एक सेकंड. Okay, it's not even allowing me to put the spaces in between. Doesn't matter if it doesn't allow you to put spaces before a number. Put a small a single quote. Then you will be able to put spaces. ठीक है? और इसके बाद also space डाल देता हूँ. Hit enter. So now this is 9 and this is 1. So both from the front as well as from the end, it has removed both the spaces. ठीक है? There's also another function. Trim के साथ अगर आप लोग use कर रहे हो, I don't think it is covered here. It is called clean. So trim के पहले आप clean लगा दो, तो कोई भी special characters अगर रहता है,
especially when you're downloading data from the internet, you will have some, you know, asterisks, hash, blah blah blah. तो वो सारा special characters को भी वो remove कर देता है. Just type clean before the trim function, open bracket and close bracket at the end. उसको कर देता है. Let's look at the next one. Upper. ठीक है. Hello guys, this is Damini from CEO IT Works. So today we are learning upper function. अपर फंक्शन बेसिकली यूज़ होता है टेक्स्ट के लिए कि अभी हमारा कोई भी नेम या फिर कोई भी लेटर है जिसका वो स्मॉल में है, तो हम उसको कन्वर्ट करने के लिए कि हमें स्मॉल में नहीं चाहिए, वो अपर में चाहिए, तो उस कंडीशन में हम अपर फंक्शन का यूज़ करते हैं. अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे नेम में AVA 3 लेटर्स इसमें स्मॉल में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ये कैप्स में बनाना है, तो कैप्स में आप 1 बाय 1 करके तो बनाओगे नहीं सभी को. इस कंडीशन में हम यूज करेंगे अपर फंक्शन इज इक्वल टू अपर. यहाँ पे स्ट्रिंग आता है, जो सिंटेक्स होता है वो होता है टेक्स्ट का. या तो आप यहाँ पे मैनुअल पे, अभी मैं आपको यहाँ इस डेटा से बताती हूँ कि इस डेटा से कैसे करेंगे. जैसे यहाँ पे टेक्स्ट मैंने यहाँ पे मैनुअल नहीं किया है और इस रेंज से सिलेक्ट कर लिया, इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया. एंड अभी आप देखोगे यहाँ पे ये जो स्मॉल था वो कैप्स में हो गया. और एक सेकंड ऑप्शन इसमें ये होता है अपर. अब यहाँ पे आपने कहा कि हमें रेंज से नहीं लेना है, मैनुअल लिखना है, बस 2-3 ही नेम है तो वो मैनुअल लिखने हैं. तो इस कंडीशन में क्या करोगे, डबल कोटेशन में आप जिस भी नेम को आप बनाना चाहते हो, जैसे ABA मैंने लिया, इसे अपर में करना है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे डबल कोटेशन में लिया और इसको मैनुअल पे वर्क कर दिया. अब एंटर किया तो यहाँ पे मैनुअल पे भी वर्क कर रहा है. इसमें दोनों ही कंडीशंस हैं. या तो आप यहाँ पे सेल रेफरेंस ले लो, अगर सेल रेफरेंस नहीं लेना है, आपको मैनुअल वर्क करना है, तो डबल कोटेशन में आपको 1 बाय 1 करके लगाना पड़ेगा. और सेल रेफरेंस का क्या होता है कि यहाँ से ये मैंने पूरा सिलेक्ट किया तो ये एक ही टाइम में सभी का कैलकुलेट करके दे देगा, सभी को कैप्स में बना देगा. ये फंक्शन इसलिए हम यूज़ करते हैं कि जो भी स्मॉल लेटर हो या प्रॉपर लेटर हो उसको कैप्स में कन्वर्ट करने के लिए अपर फंक्शन यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे अगर मैं इसको ट्रैक करती हूँ तो आप देखोगे ये ट्रैक नहीं होगा, ये जो नेम वहाँ पे था वही नेम होगा. या तो आप यहाँ पे मैनुअल जाके करना पड़ेगा आपको 1 बाय 1. इसमें मैं जैसे करती हूँ, ये है, ये किया मैंने. अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके मुझे चेंज करना पड़ रहा है. बट इस फंक्शन में क्या था कि यहाँ पे जब मैं एक बार में ही सेल रेफरेंस ले रही थी, इज इक्वल टू अपर फंक्शन, टेक्स्ट पे सेल रेफरेंस ले लिया कि मुझे इस रेंज का चेंज करना है. अब एंटर करूँगी तो यहाँ पे ये चेंज हो गया. अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, जब पूरा ड्रैग करना होगा तो कंट्रोल डाउन एरो से हम नीचे आएंगे, उसके बाद फिर राइट होंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, तो ये वहाँ से सिलेक्ट कर लेगा. और इसके बाद हम कंट्रोल D कर देंगे, जो भी हमारा फंक्शन है उसको ड्रैग डाउन कर देगा. आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा. क्लियर है. ये भी सेम चीज जो हमने एरे फॉर्मूला का बताया था ना, इस पे आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है ना. सो यू नो यू कैन टाइप एरे फॉर्मूला ओपन ब्रैकेट अपर A3, उसके बाद लेट्स से द लास्ट रो इज लेट्स से A27 और 28 व्हाटएवर. ठीक है. यू कैन से A3 कोलन A28 क्लोज ब्रैकेट हिट एंटर. ठीक है. तो उससे क्या होगा, एक ही फॉर्मूला से पूरा आपका ये सारा अपर्स बन जाएंगे. ठीक है. एक बार ट्राई करो, आप खुद एक बार ट्राई करो, मजा आएगा. Let's look at lower, just opposite of upper basically. ठीक है. Hello guys, this is Damini from CEO IT Works. So today we are learning lower function. लोअर फंक्शन बेसिकली यूज होता है टेक्स्ट के लिए. कोई भी अगर हमारा टेक्स्ट है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए. सपोज कि अगर मेरा कोई भी टेक्स्ट अपर केस में है तो उसको लोअर में कन्वर्ट करने के लिए, मीन्स कैप्स, वो जैसे यहाँ पे ये लेटर है, आप ये देख रहे हो, ये वर्ड, ये जो नेम में लिखा हुआ है ABA, ये आप देखोगे ये कैप्स में है.
इसको स्मॉल करने के लिए या तो एक ये स्मॉल कर सकते हैं हम नॉर्मल 1 बाय 1 करके लिख के, बट हम यहाँ पे 1 बाय 1 हमें नहीं करना है, कि ऐसा कुछ करना है कि एक फंक्शन लगाएं उसी से सभी का चेंज हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या यूज़ करते हैं, इस कंडीशन में होता है लोअर फंक्शन यूज़, कि किसी भी कैप्स को और प्रॉपर वे में अगर कुछ भी लिखा है तो उस सभी को लोअर फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं आपको बताती हूँ, इज इक्वल टू लोअर, इसमें स्ट्रिंग आ रहा है, सिंटेक्स जो है इसका वो है टेक्स्ट, कि हमें कौन सा टेक्स्ट लोअर करना है। या तो एक ये है कि मैंने इस पे मैनुअल लिख दिया, मुझे ये लोअर करना है, तो यहाँ पे क्या है कि मैनुअल बस एक ही, जब अगर एक ही कंडीशन को करने, जब एक ही कंडीशन आपको चेंज करनी है, मीन्स ज़्यादा नेम्स चेंज नहीं करने हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लोअर फंक्शन यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम मैनुअल कर सकते हैं। बट अभी अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो ये एक ही नेम सभी में आएगा, और जब ये स्टेबल हो जाता है, जब हम यहाँ पे मैनुअल लिखते हैं तो वो फंक्शन स्टेबल कर देता है। और अगर हमें चाहिए डायनामिक वे में, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इज इक्वल टू लोअर, टेक्स्ट में सेल रेफरेंस ले लिया एंड एंटर। अब आप देखोगे ये यहाँ पे कैप्स में है और ये इधर स्मॉल हो गया। मैं इसको सभी में ड्रैग डाउन कर देती हूँ, तो अभी आप देखोगे कि एक ही बार फंक्शन लगाया था, बस उसको सभी में ड्रैग डाउन कर दिया और ये सभी को इसने स्मॉल कर दिया, लोअर केस में कर दिया। यहाँ पे कुछ नेम्स अपर केस के थे, कुछ नेम प्रॉपर केस के थे, तो अब यहाँ पे एकदम लोअर फंक्शन हमने लगाया तो सारे नेम्स को इसने लोअर केस में चेंज कर दिया। तो लोअर फंक्शन आई होप कि सभी को समझ आ गया हो। लोअर फंक्शन बेसिकली टेक्स्ट के लिए ही यूज़ होता है, इसको हम नंबर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर डायनामिक बनाना है तो लोअर के साथ जिस रेंज को हमें डायनामिक बनाना है उसका सेल रेफरेंस लेना होता है। और अगर कुछ ही नेम है कि आप चाहते हो कि डायनामिक नहीं स्टेबल ही रहना चाहिए, तो उस कंडीशन में मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इज इक्वल टू लोअर, डबल कोटेशंस में आप कोई भी नेम लिख दो। मैंने यहाँ पे लिखा, ये लिख दिया एंड ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो यहाँ पे ये मैनुअल वे में भी इसका आंसर दे देगा। और अगर मैनुअल नहीं चाहिए, सेल रेफरेंस के साथ में डायनामिक वे में चाहिए, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे लोअर फंक्शन विद सेल रेफरेंस यूज कर सकते हैं कि किस रेंज से हमको डेटा कन्वर्ट करना है। ये होता है लोअर फंक्शन। Okay, so I'm guessing this is clear. If upper was clear, then lower was just opposite of upper. And Anandji is asking what's the menu today. So the menu is right here, Anandji. We are basically doing text functions from our formula.coitbox.com page. Okay, so we are basically going to cover all of this. Those of you who have access to our, that particular website, okay, you can. One second, let me see if I have it here. Just one second, I'll put this in the chat. So basically you can go to this particular site and access all of this at a later time. Okay. Proper function, I think this is a very useful function, especially जब आप आपका कोई भी marketing database use कर रहे हैं, ठीक है ना? People enter data in all different formats, like I hate to see my name written like Abhishek in all caps and then Bose in all small, right? If somebody is trying to address me by my name, okay, I would like to see my A capital and VISHEK in small and then B capital and OSE in small, right? So either आप मुझे hello बोल के बुलाओ, या फिर if you are calling me by my name, just get it right, ठीक है ना? But many times people do not know how to get that right. कि आपके पास हजारों ऐसे नाम है, बैठ के कोई कितना केसेस को सुधारेगा, ठीक है? So obviously you don't need to do that manually. आप सिंपली एक प्रॉपर फंक्शन यूज कर सकते हो। प्रॉपर फंक्शन में बेसिकली
जो फर्स्ट लेटर Hello रहता है guys, हर एक this is वर्ड का वो Damini from कैपिटलाइज हो COIT जाता है। Box. So today we are learning proper function. Proper basically यूज होता है टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट टू कैपिटलाइज मीन्स कोई भी हमारा नेम लिखा हुआ है तो उसमें कुछ लेटर्स कैप्स में है, कुछ लेटर स्मॉल में है, कोई सीक्वेंस नहीं है उसका। एंड प्रॉपर वर्क करता है कि फर्स्ट लेटर सिर्फ ओनली फर्स्ट लेटर कैप्स में होना चाहिए और अनदर लेटर जो रिमेनिंग लेटर्स होते हैं वो स्मॉल में होने चाहिए। तो प्रॉपर वर्क करता है टेक्स्ट टू कैपिटलाइज कि फर्स्ट कैप्स में रहेगा और बाकी लेटर्स स्मॉल में होंगे। अब यहाँ पे जैसे कुछ नेम्स स्मॉल में है, कुछ नेम्स कैप्स में है, तो अभी आप यहाँ देखोगे अल्फाबेटिकल जो भी नेम्स लिखे हुए हैं उनका कोई सीक्वेंस नहीं है। और बेसिकली आपने देखा होगा नेम हमेशा नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैप्स में होता है एंड जो रिमेनिंग होते हैं वो स्मॉल में होते हैं। तो इसी के लिए हम यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन यूज करते हैं। प्रॉपर फंक्शन यूज करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो आप सेल रेफरेंस के थ्रू कर सकते हो जो डायनामिक बनाता है, और एक आप मैनुअल वर्क कर सकते हो उसमें जो से स्टेबल हो जाता है कि जहाँ पे आपने फंक्शन लगाया है वो वहीं पे ही वर्क करेगा। अगर आप उसे किसी भी रेंज में किसी भी सेल में आप उसको कॉपी करोगे तो वो वहाँ पे डायनामिक नहीं होगा। एंड मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखाती हूँ। फर्स्ट वे ये होता है प्रॉपर, एक तो ये है मैनुअल वे में कि मैंने यहाँ पे कर दिया ABA लिख दिया है और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये क्या हुआ कि ये स्टेबल हो गया। फिर आप देखोगे फर्स्ट लेटर इसका कैप्स हो गया है और रिमेनिंग लेटर्स इसके स्मॉल में है। जो एक सीक्वेंस होता है नेम का इसमें वो आ गया है। अब इन केस मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो ड्रैग करने पर मुझे बस एक ही आंसर मिलेगा। एक ही आंसर इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे कोटेशंस में डबल कोटेशन मार्क में फिक्स कर दिया है कि मुझे बस यही वाला नेम प्रॉपर करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। ये स्टेबल हो गया है। अब इसमें कहीं पे भी हम ड्रैग करेंगे हमें बस एक ही आंसर शो होगा और कोई भी आंसर शो नहीं होगा। इसलिए इसको डायनामिक बनाने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रॉपर। अब यहाँ पे आप देखोगे ये आ रहा है सिंटेक्स आ रहा है टेक्स्ट टू कैपिटलाइज, जो भी टेक्स्ट है उसको फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा और रिमेनिंग लेटर्स को स्मॉल कर देगा। तो अब यहाँ पे आप सिंटेक्स भी देख रहे हो। अब मुझे करना है इस वाले सेल रेफरेंस से लेना है 8-3 पे जो भी डेटा है उसको चेंज कर दे। तो मैंने अब इस पर सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब यहाँ पे ये कर दिया। इसमें क्या है कि अगर मैं इसको नीचे ड्रैग भी करती हूँ तो मुझे सभी का आंसर वो सही देगा। आप देख रहे हो यहाँ पे सभी जितनी भी रेंज थी इस रेंज का मुझे सही से आंसर यहाँ पे आ गया कि फर्स्ट लेटर इसका कैप्स में हो गया, रिमेनिंग लेटर इसके स्मॉल में हो गए। तो प्रॉपर वर्क बेसिकली इसी प्रॉपर फंक्शन बेसिकली इसीलिए ही यूज होता है कि जो भी हमारे नेम्स हैं नेम्स के फर्स्ट सीक्वेंस को चेंज करने के लिए। और ये काफ़ी कई जगह पे यूज होता है कि हमारा कोई भी डेटा है उसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं है कि पता नहीं फर्स्ट लेटर स्मॉल है या कैप्स है, तो इसके लिए हम यही फंक्शन यूज करते हैं। अब मैं इसको जब ड्रैग करती हूँ तो आप देखोगे कहीं कहीं पे अपर केस थे, यहाँ पे अपर केस था कि सारा ही नेम इसमें अपर में है, तो इसको यहाँ चेंज कर दिया, प्रॉपर में चेंज हो गया। प्रॉपर में चेंज होने के बाद फर्स्ट लेटर इसका कैप्स हो गया। आई होप कि सभी को समझ आ गया होगा प्रॉपर फंक्शन का वर्क, कि प्रॉपर फंक्शन किस तरीके से। So questions from the group, proper can be used with trim or not? Absolutely, we can use proper with trim as well. Not a great example to show with a number, but let me just any which ways show you here. So we can simply do I will actually first use proper and then use trim, because I do not want the proper function to run the entire length of characters, if you understand that. So PROPER, okay, then TRIM, open bracket, and I'll take this and I will close this. So this will become proper like this. Okay, na? So again, this can definitely be some characters as well. Let's say my surname, so it'll become proper, and it trims it as well. So definitely this is a useful function to sort of put in all your sheets. अच्छा, आगे बढ़ते हैं। Now comes join.
Hello guys, this is Damini from CEOIT Works. So today we are learning join function. Join फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि अब हमारे कुछ रेंजेस हैं जिसमें किसी में फर्स्ट नेम है, किसी रेंज में लास्ट नेम है एंड किसी रेंज में उसके सीक्वेंस नंबर है और हमें चाहिए कि एक ही रेंज में वो सभी एक साथ आ जाए, मीन्स कंपाइल होकर डेटा आ जाए। तो जॉइन फंक्शन का हम यूज़ करते हैं डेटा कंपाइल करने के लिए। आपने पहले भी देखा होगा कि कॉन्केटिनेट का करना होता है, बट कॉन्केटिनेट में क्या होता है कि वहाँ पे वो वन बाय वन करके हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि ए रेंज को सिलेक्ट किया, फिर बी रेंज को सिलेक्ट किया एंड इनके बीच में हमें वो सिंटेक्स वो देना पड़ता है कि ए सेल के बीच में और बी सेल के बीच में हमें क्या चाहिए कि हाइफन चाहिए या स्पेस चाहिए या फिर विदाउट स्पेस चाहिए। तो हमें उसमें वन बाय वन करके इंसर्ट करना पड़ता है। बट जॉइन फंक्शन में क्या होता है, ये एरे बेस पे वर्क करता है। जैसे मैं आपको अभी फर्स्ट एंड लास्ट नेम ज्वाइन करके दिखाती हूँ। इज इक्वल टू ज्वाइन, ये डेलिमिटर आ गया कि हमें इन टेक्स्ट के बीच में फर्स्ट एंड लास्ट नेम के बीच में क्या देना है। हाइफन देना है, स्पेस देना है, @ देना है, ये कुछ भी हमें इसमें सिंबल देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोटेशन मार्क लिया। अभी इसमें डबल कोटेशन मार्क ऑन ऑफ वाला ले लिया है तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये क्या करेगा, जब मैं वैल्यू और एरे वन, जब मैं इसमें वैल्यू को लूंगी तो वहाँ पे क्या होगा, वो दोनों डेटा के बीच दोनों को वो एक साथ कर देगा। फर्स्ट एंड लास्ट नेम के बीच में कोई स्पेस शो नहीं करेगा। जैसा मैं अभी दिखा देती हूँ। इसमें आप या तो ऐसे कर सकते हो जैसे आपने ये किया, फिर आपने ये कर लिया। तो अभी यहाँ पे एक तो वन बाय वन करके हो गया कि आप वन बाय वन कर रहे हो। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक साथ आ गया है ABA और इसका जो लास्ट नेम है वो भी इसके साथ में आ गया है। बट हमें ये ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि इन दोनों नेम्स के बीच में स्पेस आना चाहिए या फिर हाइफन आना चाहिए। अब मैं जब यहाँ पे हाइफन लगाती हूँ, जैसे मैंने हाइफन लगाया और अब एंटर करती हूँ तो आप देखोगे दोनों नेम्स के बीच में हाइफन आ गया। और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि ये नंबर पे भी वर्क करेगा। ये जॉइन फंक्शन का ऐसा नहीं है कि ये टेक्स्ट पे वर्क करे, ये नंबर पे भी वर्क करेगा। कि अगर यहाँ पे जैसे फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी है और इसका सीक्वेंस भी है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, इधर 2 कर दिया और मुझे चाहिए कि ये तीनों इसमें ऐड हो जाएं, तीनों एक साथ आए, इस वाली रेंज में तीनों एक साथ आए। तो यहाँ से जॉइन फंक्शन स्टार्ट किया। डेलिमिटर में हमने यहाँ पे हाइफन दे दिया और ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें कुछ भी दे सकते हो। हाइफन देना है हाइफन दो, या फिर कुछ भी मतलब सिलेक्ट करना है तो आप वो दे सकते हो यहाँ पे। अभी या तो मैं ऐसे कर सकती हूँ वन बाय वन, A3 को लिया, फिर B3 को लिया, फिर C3 को लिया। अब एंटर करती हूँ तो वो तीनों को इसने ऐड कर दिया है और तीनों की नेम्स में फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ज्वाइन इसमें जो सीक्वेंस दिया था इन दोनों के बीच में हाइफन दे दिया। और या फिर आप एरे बेस पे वर्क कर सकते हो, जैसे इज इक्वल टू ज्वाइन फंक्शन किया, डेलिमिटर में इस बार स्पेस देते हैं, स्पेस दिया, या कॉमा भी दे सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हैं, फुल स्टॉप भी दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे वन बाय वन सिलेक्ट नहीं करके मैंने एक साथ इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। तो जब मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ तो आप देखोगे कि ये तीनों एक साथ आ गए हैं, ये भी आ गया। अब इन केस मैं यहाँ पे कुछ चेंज करती हूँ, मैंने @ लगाया है इधर, तो अब देखोगे कि यहाँ पे @ भी आ गया है। कुछ भी अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, कोई भी कैरेक्टर करती हूँ या कोई नंबर करती हूँ या कोई टेक्स्ट करती हूँ, तो ज्वाइन फंक्शन उन तीनों को ज्वाइन करा देगा जो भी हमें मतलब डेटा ज्वाइन कराना है। और इसमें आप इसको एक साथ ड्रैग डाउन कर दोगे तो ये सभी का आंसर एक साथ कर देगा। जैसे मैंने अभी ड्रैग किया और जिसमें नंबर है तो उसने उसका नंबर दे दिया, जिसमें क्वेश्चन मार्क है उसने उसका क्वेश्चन मार्क दे दिया, और जिसमें कुछ भी नहीं है तो उसने बस फर्स्ट एंड लास्ट नेम को मर्ज करके इसमें शो कर दिया। ये हमारी चॉइसेस हैं। आई होप कि ज्वाइन फंक्शन सभी को समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से कर देती हूँ, इज इक्वल टू ज्वाइन, डेलिमिटर में इस बार फुल स्टॉप देते हैं और स्पेस देते हैं, कॉमा। अब इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखोगे यहाँ पे कॉमा भी आ गया है और नेम्स के बीच में स्पेस भी आ गया है, ABA कॉमा एंड स्पेस, क्योंकि मैंने कॉमा और स्पेस एक साथ दिया था। ये होता है ज्वाइन फंक्शन।
क्वेश्चंस गाइस इसमें एनी? यहाँ पे दोज ऑफ यू यू नो हु आर न्यू टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन, आप यहाँ पे ना सिंपली यू नो ओल्ड स्कूल मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है? वो है एम्परसैंड साइन यूज करने का. दोज ऑफ यू डू नॉट नो, जस्ट लुक एट दिस. लेट्स से मैं ना एक और शीट दे देता हूँ. So let's say if I have Avi here, sorry for being so self-absorbed today, ठीक है? And I want to put both of this together, ठीक है? I can do equals to this cell ampersand this cell. तो ये भी काम करता है, ठीक है? बट इसमें क्या होता है कि जो बीच का जो डिलिमिटर है वो आपको मैनुअली डालना पड़ेगा. मतलब ये ampersand के बीच में you can put a double quote here and then put a space, another double quote, and then another ampersand sign. So you can achieve similar thing like this also, ठीक है? बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास 10 कॉलम्स हैं, ठीक है, देन वो हर बार एम्परसैंड और फिर वो डबल कोट स्पेस डबल कोट एम्परसैंड ऐसे कर करके आपको करना पड़ेगा. सो देन बेटर इज टू यूज जॉइन. वहां पे आप एक ही बार में वो डिलिमिटर डाल दोगे और all the 10 cells will be basically spaced out with the delimiter. Okay, let's look at the next one, text join. Interesting function. Hello guys, this is Damini from CEO IT Works. So today we are learning text join function. Text join basically work करता है, इसको alternate concatenate का भी फंक्शन बोल सकते हैं कि concatenate से concatenate फंक्शन का ये alternate भी है, advanced alternate, जिसमें ये टेक्स्ट को भी नंबर को भी ये सब कंपाइल कर देता है. इसमें क्या है कि अगर हम रो वाइज भी कंपाइल कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कंपाइल कर सकते हैं. अगर हम इस पूरे रो को कंपाइल करें तब टेक्स्ट जॉइन इजीली वर्क कर सकता है कि हमें एक ही सेल में ये सारे नेम चाहिए. तो अब हमें यहाँ पे वन बाय वन नहीं करना पड़ेगा. जैसे देखा होगा कि जब हम कॉन्केटिनेट करते हैं, यहाँ पे जब कॉन्केटिनेट करते हैं तो इसमें हमें स्ट्रिंग वाइज लेना होता है. स्ट्रिंग 1, देन हमें यहाँ पे एक स्पेस देना होता है, फिर स्ट्रिंग यहाँ पे, फिर ये हो गया, ये फंक्शन लिया. अब ये ऐसे करना पड़ता है. बट इन केस कि मुझे इसी में ये सारे जो भी रो है मुझे इसका डेटा चाहिए एक ही रेंज में, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, A3 के बाद फिर कॉमा, फिर A4 A5 A6 वन बाय वन करके यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा. बट टेक्स्ट जॉइन फंक्शन क्या है, ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है यूज़ करने के लिए. टेक्स्ट जॉइन फंक्शन, इसमें क्या डेलीमीटर कि हमें अगर हम रो का ही डेटा कंपाइल करना है, ज्वाइन करना है, तो उसके डेलीमीटर क्या देना है, मीन्स उसमें स्पेस देना है बीच में या फिर ब्लैंक देना है, तो ये उसके लिए यूज़ होगा. जैसे मैंने यहाँ पे इसमें डेलीमीटर डिफाइन कर दिया, कॉमा. इग्नोर एम्पटी में हमें करना होता है ट्रू, कॉमा. टेक्स्ट वन या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि टेक्स्ट 1 ये हो गया एंड टेक्स्ट 2 हमारा ये हो गया. तो वन बाय वन करके या तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, और अगर हमें वन बाय वन नहीं करना है, यहाँ पे मैं देखती हूँ, तो यहाँ पे मुझे बस क्या करना पड़ा, A3 और B3 को लिया और यहाँ पे ड्रैग डाउन कर दिया. और इसमें एक एरे फॉर्मेट में भी हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. जैसे यहाँ से ये रेंज सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे ये एक साथ इसके साथ भी डेटा आ गया A3 to B3 तक. बट अब चाहिए कि जितने भी फर्स्ट नेम है ये सारे कंपाइल हो जाए. तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं फिर से टेक्स्ट जॉइन फंक्शन यूज कर देंगे. टेक्स्ट जॉइन डेलीमीटर दे दिया इसमें, कॉमा एंड स्पेस. इग्नोर एम्पटी में ट्रू करना है. अब टेक्स्ट 1 क्या हो गया हमारा, ये हो गया. अब ये हमें एंड तक का डेटा इसमें चाहिए, A3 से लेके A25 तक. ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया. और आप देखोगे एक ही
फर्स्ट नेम सभी के आ गए हैं कंपाइल होके, उसमें कॉमा भी लग गया है और स्पेस भी लग गया है। और इसी में चाहते हो कि लास्ट नेम भी आ जाए साथ ही इसके, कॉमा किया, आपने टेक्स्ट 2 पे ये सिलेक्ट किया एंड B3 to B25 का डेटा इस पे ले लिया। अब यहाँ पे एंटर करेंगे तब यहाँ देखोगे फर्स्ट नेम आ गया पहले सभी का, फिर उसके बाद यहाँ सेकंड नेम आ गया सभी का, ये जो भी आपको डेटा दिख रहा है ये यहाँ पे देखो ये डेटा आ गया सभी का कंपाइल होके। तो ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है कि हम इसमें अभी मल्टीपल रोज को भी हम इसमें कंपाइल कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को भी कंपाइल कर सकते हैं और मल्टीपल रोज कॉलम को एक साथ भी कंपाइल कर सकते हैं। तो टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन बेसिकली ज्वाइन करने के लिए होता है कि कोई भी 2 सेल्स में डेटा है, 2 कॉलम्स में डेटा है, 3 कॉलम्स में डेटा है, कितने भी कॉलम्स में डेटा है या फिर कितने भी रोज में डेटा है, वो सभी को वन टाइम में ही कंपाइल कर देता है। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन डेलिमीटर मैंने इसमें दे दिया हाइफन कॉमा, इग्नोर एम्प्टी को ट्रू करते हैं। टेक्स्ट 1 हमारा ये हो गया, टेक्स्ट 2 हमारा B3 हो गया। यहाँ पे किया ये फंक्शन ब्रेक डाउन किया। अब यहाँ देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बीच में हाइफन भी आ गया और हमारा ये दोनों का डेटा कंपाइल होके भी इधर आ गया है। Some people are looking a little confused. Is it okay? ये थोड़ा डिफिकल्ट था क्या? All good ना? आगे बढ़े? गाइस कोई तो बताओ, अनम्यूट कर लो, चैट पे डाल दो। आई होप दिस इज क्लियर। It is clear. Yes, sir. ग्रेट। सो गाइस ये जो फंक्शन है, ठीक है, अभी जो फंक्शन अभी हम करने वाले हैं, आई कैन गारंटी ऑल ऑफ यू कि ये फंक्शन आपका काम में आपको लगने वाला है। तो ये वाला फंक्शन आई थिंक यू गाइस आर ऑलरेडी यूजिंग इट, बट इफ नॉट इसको प्लीज ध्यान से देखिए। द फंक्शन इटसेल्फ इज कॉल्ड यूनिक, ठीक है, ये बहुत काम का फंक्शन है। हेलो, मेरा नाम है योगेश और आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिक फंक्शन के बारे में, जो कि गूगल शीट का एक सबसे जेन्युइन जो है कह सकते हैं हम फंक्शन है। तो यूनिक फंक्शन जनरली यूज़ किया जाता है डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए, हमारी गूगल शीट के अंदर से या किसी डेटा के अंदर से रिमूव करने के लिए, या पर्टिकुलर एक किसी रेंज से डिलीट करने के लिए। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं इसका आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ। सिंटेक्स है इक्वल टू यूनिक। इसका सिंटेक्स आप देखेंगे तो सबसे पहले ये सिंटेक्स में रेंज मांगता है। रेंज यानी कि वो रेंज जिसको हम शॉर्ट करना चाहते हैं, सॉरी शॉर्ट नहीं, यूनिक करना चाहते हैं या डुप्लीकेट्स रिमूव करना चाहते हैं। और जो आप क्लोज्ड ब्रैकेट में देख रहे हैं ये बाय कॉलम और एग्जैक्टली वंस का जो दिख रहा है, वो क्लोज ब्रैकेट में जो लिखा है वो ऑप्शनल है, अगर आप उसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये यूनिक फंक्शन का पूरा सिंटेक्स है जो आपको ये दिखाई दे रहा है। और अगर ये सिंटेक्स आपको किसी को नज़र नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सिंटेक्स पूरा दिखने लग जाएगा। इसके साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और मैंने डिफाइन भी किया हुआ है कि रेंज अब किसको कहते हैं, तो वो मैंने इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो मैं एक दो क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन करेंगे या इसको यूज़ करेंगे तो बेटर आइडिया होगा हमें। तो मैं अपने S1 शीट पे आया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूनिक नेम्स को, मतलब ये जो मेरा डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, इस डेटा में से ये जो नेम का कॉलम है इसमें से मैं यूनिक नेम्स निकालूंगा। तो उसको यूज करके देखते हैं। देखिए यूनिक नेम्स मेरे पूरे कैलकुलेट होके आ चुके हैं और इसी तरीके से मैं अगर यूनिक नंबर्स निकालना चाहता हूँ या कोई और कॉलम्स निकालना चाहता हूँ तो मैं उसको So, one second. I think this video was a little messed up, ठीक है? But do you guys understand the basic concept of unique function? आपके पास अगर कोई भी एक कॉलम है, ठीक है ना, उसमें आप सोचो कि आपके पास काफी सारा डेटा है, ठीक है?
बट आपको वो सारा डेटा में से जितने भी यूनिक वैल्यूज हैं वो निकालने हैं, ठीक है। सो यू कैन जस्ट यूज द यूनिक फॉर्मूला, ठीक है। लेट्स से आई हैव अ लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर्स, लेट्स से random between low number is 1 and the higher number is let's say 100, ठीक है। इसको मैं नीचे ड्रैग कर सकता हूँ, so I will let's say take up till 90 random numbers. इसमें से let's see how many times the random numbers have repeated itself, ठीक है। so what we can do is equals to unique, and ये जो मेरा range है I'll simply select this range and I'll hit enter, ठीक है। let's see how many I'm getting. ये देखिए total I had was up till row number 90, but of the 90 rows, ठीक है, I only have 61 unique values, ठीक है। so you can basically use this function also. आपका कस्टमर नेम्स हो गया, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो, कस्टमर्स का जो भी ईमेल आईडी हो जाते हैं, तो बेसिकली गेट अ यूनिक लिस्ट ऑफ ऑल योर कस्टमर्स, सो दैट लेट्स से यू आर सेंडिंग आउट व्हाट्सएप्स to them, ठीक है। you do not want to send the same message to the same client multiple times, right? तो आपका जो भी लिस्ट है उसका एक यूनिक नंबर्स का एक लिस्ट निकाल लो और उस नंबर्स को आप यूज करो फॉर योर व्हाट्सएप marketing or whatever campaign. Again, if you're using our WhatsApp sheet, please use it for farming and not for hunting. What I mean by that is, do not just spam people with your products or whatever it is. Try and reach out to only existing customers, or try and first create a sort of a trust factor. Give them some information, give them something that they can actually benefit from, rather than telling them, here's my product, buy it right now, ठीक है ना। Otherwise what will happen is they will block your number immediately, and then you'll again have to come back to us, or you'll have to write to WhatsApp asking them to unblock your number, apology, blah blah blah, ठीक है। so आगे चलते हैं concatenate पे। हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कॉन्केटिनेट फंक्शन एंड जॉइन फंक्शन एंड एम्परसेंड का हम यूज कहाँ पे करते हैं वो हम सीखते हैं आज। बेसिकली कॉन्केटिनेट फंक्शन का हमारा वर्क क्या होता है कि आपको दो टेक्स्ट को ज्वाइन करना है, या दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है, दो नंबर्स को ज्वाइन करना है, जो कि आपको दो पर्टिकुलर प्लेसेस पे हैं, दो अलग अलग सेल्स में आप कर सकते हैं। सो लेट्स एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पर क्या है, आपके फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम, ये तीनों अलग अलग कॉलम्स में अब आपको एक साथ इनको ज्वाइन करना है। क्या नाम क्या करना है, नीरज कुमार सिंह। यहाँ पर आपकी ये इनपुट, आपका आउटपुट ये आना चाहिए, राइट। सो अब इन तीनों टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं कॉनकेटिनेट। तो कॉनकेटिनेट कैसे वर्क करता है वो हम देखते हैं। तो कॉनकेटिनेट का बेसिकली इक्वल टू लगाएंगे हम, यहाँ पर यूज लिखेंगे कॉनकेटिनेट आ गया हमारा, एंड इसका आर्गुमेंट देखते हैं। इसका आर्गुमेंट बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, ऐसी आपको जितने भी आपकी स्ट्रिंग्स हैं, आपको कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर कि आप यहाँ पे 3 टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, 4 टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टीपल, अनलिमिटेड, जितनी आपकी मर्जी उतने आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ करना नहीं है, बस आपको उसको एक रेफरेंस लेना है। यहाँ ये आपका स्ट्रिंग 1 हो गया, ये आपका स्ट्रिंग 2 हो गया, ये आपका स्ट्रिंग 3 हो गया, ये आपका स्ट्रिंग 4, मल्टीपल जितने भी है आपके स्ट्रिंग्स वो आप ले सकते हैं, सब आप ज्वाइन कर सकते हैं एक ही सेल के अंदर। इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, राइट। एंड ब्रैकेट को जितने आपको स्ट्रिंग ज्वाइन करने हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे कॉमा लगा के। सो अभी आप देख रहे हैं जितने हमने सेल्स यहाँ पर ये सारे के सारे एक सेल पे ज्वाइन होकर आ गए यहाँ पर। तो बेसिकली हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको चाहिए नीरज देन स्पेस देन कुमार देन सिंह देन सिंह हम आना चाहिए, मतलब तीनों के बीच में हमें ये हमारा फर्स्ट नेम, मिड नेम, लास्ट नेम तीनों से ज्वाइन होना चाहिए, एंड तीनों के बीच में स्पेस होना चाहिए, राइट। इसको हम कैसे करेंगे यहाँ पर, कॉनकेटिनेट कॉनकेटिनेट हमने लिया। यहाँ पर आपके A2
80 में बार नीरज है, देन उसके बाद हम क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो स्पेस के लिए क्या करेंगे हम, डबल कोटेशन देन स्पेस देन डबल कोटेशन में क्लोज करेंगे उसको हम। देन हमारा फर्स्ट नेम आ गया, उसके बाद हमने स्पेस डाल दिया, उसके बाद हमें क्या चाहिए, स्पेस के बाद हमें मिड नेम चाहिए, राइट। देन यहाँ पर कॉमा आएगा, देन हमें इसके मिडने के बाद क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। देन यहाँ पर हम डबल कोटेशन में स्पेस डाल देंगे। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, लास्ट नेम चाहिए। तो ये आपका प्रॉपर फॉर्म आ गया आपका नीरज कुमार सिंह। आपको फर्स्ट नेम मिडिल नेम के बीच में एक स्पेस आ गया और मिडिल नेम लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस आ गया, राइट। अब इसको हम ड्रैग कर देंगे नीचे तक। तो ये आपका नीचे तक योगेश कुमार शर्मा, अनुज कुमार शर्मा, ये तीनों नेम ज्वाइन होकर आ गया आपके। अब ये तो हो गया आपको कॉन्केटिनेट से, ठीक है। अब हम इसको सीखते हैं एम्परसेंड से। एम्परसेंड मतलब आपकी एंड का साइन होता है, तो इससे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इससे भी आप मल्टीपल टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। तो इससे हम कैसे करेंगे, हमने रेफरेंस लिया फर्स्ट नेम का, देन क्या करेंगे हम, एम्परसेंड। अब देखिए, अब एम्परसेंड के बाद हम अगर नॉर्मली हम ले लेते हैं मिड नेम, तो क्या करेगा, इन दोनों को ज्वाइन कर देगा ये। अभी आप देख रहे हैं एम्परसेंड से क्या किया इसने, दोनों को ज्वाइन कर दिया, राइट। बट अगर हमें इसके बीच में स्पेस चाहिए, तो कैसे करेंगे हम, स्पेस लाने के लिए दोनों के बीच में, सो दोबारा हम यहाँ पर A2 का रेफरेंस देंगे, देन एम्परसेंड। अब हमें क्या चाहिए, स्पेस। देन फिर हम स्पेस के लिए क्या करें, डबल कोटेशन में हम यहाँ पर स्पेस डाल देंगे। देन फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एम्परसेंड। फिर हम लेंगे मिड नेम, मिड नेम लिया हमने, देन हमें क्या चाहिए, उसके बाद फिर हम एम्परसेंड लगाएंगे, फिर डबल कोटेशन में स्पेस डालेंगे। देन हमें क्या चाहिए, लास्ट नेम चाहिए। तो ये क्या करेगा, आपको तीनों के तीन नाम को ज्वाइन करके यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा नीरज कुमार सिंह, जैसे यहाँ पर कॉन्केटिनेट से आया था, राइट। एंड इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। अब हमने सीख लिया कॉन्केटिनेट से कैसे करते हैं ज्वाइन, एम्परसेंड से कैसे करते हैं ज्वाइन। अब अभी तो हमने स्पेस के साथ देखा, अगर आपको बीच में अगर मान लीजिए कि वो हाइफन लेके आना है, सो आप नॉर्मली इसको कर सकते हैं कॉन्केटिनेट या उससे एम्परसेंड से। तो आपने यहाँ पे A2 का रेफरेंस दिया, देन अगर आपको स्पेस से ज्वाइन करना है तो स्पेस डालिए डबल कोटेशन में। अगर आपको कुछ और टेक्स्ट लिखना है तो लाइक आपको हाइफन देना है यहाँ पर, तो हाइफन दे दीजिए। आपको प्लस का साइन देना है तो प्लस का साइन दे दीजिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एम्परसेंड लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमने B2 का रेफरेंस दे दिया, तो क्या करेगा ये, नीरज प्लस कुमार ऐसा आ गया। तो जिस चीज के साथ आपको दोनों को ज्वाइन करना है उसको यहाँ पर डबल कोटेशन में डाल देना है, राइट। डबल कोटेशन हम डाल देते हैं, हाइफन डाल देते हैं, हाइफन आ गया ये, ठीक है। अब ये इस तरह इस फॉर्म में आ गया। अगर आप चाहते हैं, अब अगर आप चाहते हैं इसमें लास्ट नेम को ज्वाइन कर, लास्ट नेम के लिए फिर हम दोबारा यहाँ पे एम्परसेंड, यहाँ पे डबल कोटेशन में हमारा ये हाइफन आ जाएगा, देन एम्परसेंड, यहाँ पर मैंने लास्ट नेम डाल दिया। तो ये दोनों यहाँ पर नीरज हाइफन कुमार हाइफन सिंह आ गया, इस तरीके से आ गया, राइट। तो जिस चीज को, जो भी चीज आपको बीच में यहाँ पे इंक्लूड करना है, सो यहाँ पर आपके एम्परसेंड में डाल देना है इसको, बस सिंपल। अभी हमने सीख लिया ये एम्परसेंड का यूज कैसे करते हैं ज्वाइन करने के लिए। अब सबसे इजी एंड सिंपल तरीका होता है आपका ज्वाइन फंक्शन। ज्वाइन फंक्शन से कैसे करते हैं इसको, तो ज्वाइन का बेसिकली दो आर्गुमेंट होता है। फर्स्ट आर्गुमेंट होता है आपका डेलीमीटर एंड सेकंड आर्गुमेंट होता है आपका टेक्स्ट। ज्वाइन का मैं फंक्शन बताता हूँ आपको, ज्वाइन से कॉन्केटिनेट द एलिमेंट्स ऑफ अरेज विद डेलीमीटर। तो इसके लिए क्या करना, इसके लिए आपको बार बार ऐसे कि हम कॉन्केटिनेट में कर रहे थे, कॉन्केटिनेट के एम्परसेंड की कंडीशन में हमने पहले A2 लिया, देन B2 लिया, देन C2 लिया था। So I know you guys have already gone through the join function, but एक बार नीरज का भी डेफिनेशन एक बार सुन लेते, क्या पता कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है ना। एक बार इसको देख लेते। उसके बीच में हमने स्पेस डाला, इसके लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं। अगर आपको तीनों के बीच में स्पेस चाहिए, कहना मतलब कि लेट्स सपोज अगर आपको तीनों फर्स्ट नेम मिड नेम लास्ट नेम, सबसे पहले हमारा क्या है, इसका आर्गुमेंट है डेलीमीटर। तो डेलीमीटर हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो उन तीनों को ज्वाइन करेगा, स्पेस चाहिए। देन हमें क्या चाहिए, एरे।
तो एरे हमारा क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, फर्स्ट नेम मिड नेम लास्ट नेम A2 से लेकर C2। देन एंटर कीजिए, तो ये क्या आ गया, ये तीनों को एक साथ इसने जॉइन कर दिया। तो ये इस कंडीशन में काम करता है जब आपका डेलीमीटर सेम रहता है। डेलीमीटर कहने का मतलब जो आपकी ब्रिज की वैल्यू होगी, नीरज दो दो टेक्स्ट को जॉइन करेगी वो सेम होनी चाहिए, तब जॉइन फंक्शन काम कर जाता है। लेट्स सपोज कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको नीरज और कुमार के बीच में स्पेस चाहिए एंड कुमार और सिंह के बीच में आपको कुछ और आइकन चाहिए, हाइफन चाहिए, तो उस कंडीशन में आप कॉन्केटिनेट या आपका एम्परसेंड काम आएगा। जैसे कि अभी तो जॉइन फंक्शन से हमने कर दिया, हमने तीनों के बीच में क्या फर्स्ट नेम मिड नेम लास्ट नेम के बीच में क्या करते हैं, स्पेस डाल दिया। अगर आपको फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच में स्पेस चाहिए, सेकंड नेम लास्ट नेम के बीच में हाइफन चाहिए, देन आप ये फंक्शन यूज नहीं कर सकते जॉइन फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करना पड़ता है, सेम कॉन्केटिनेट या एम्परसेंड। लाइक अब देखिए हम कॉन्केटिनेट से करते हैं इसको। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच में स्पेस चाहिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच में स्पेस देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड सेकंड नेम और लास्ट नेम के बीच में क्या चाहिए, हाइफन का साइन, हाइफन दे दिया हमने यहाँ पर। देन हमने लास्ट नेम का यहाँ पर पैटर्न दे दिया। ये देखिए फर्स्ट नेम और सेकंड नेम के बीच हमारा क्या आ गया, स्पेस आ गया, एंड सेकंड नेम और लास्ट नेम के बीच हमारा क्या आ गया, हाइफन आ गया, राइट। तो अगर आपका डेलीमीटर जो जॉइन करने का जो पैरामीटर है वो चेंज होगा आगे, तो उस कंडीशन में आपका कॉन्केटिनेट यूजफुल रहेगा। अगर आपको तीनों टेस्ट को जॉइन करने का पैरामीटर सेम रहेगा या स्पेस रहेगा या हाइफन रहेगा, सेम चीज रहेगी, तो उस कंडीशन में आपका यूजफुल रहेगा जॉइन फंक्शन, जो आप इजीली कर सकते हैं। आपको नॉर्मली डेलीमीटर देना है एंड आपको रेफरेंस दे देना है, जिससे आपको टेस्ट जॉइन होकर आ जाएगा एक सेल के अंदर। अब इससे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये हमने इससे फॉर्मूले को ड्रैग कर दिया। अब हम देखते हैं, अब अगर आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम ले आए हम, देन उसके बाद हमें चाहिए मोबाइल नंबर, देन उसके बाद हमें क्या चाहिए, आपका लास्ट नेम, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सेम। अब इसके लिए आप या तो जॉइन यूज कर सकते हैं, या आप कॉन्केटिनेट यूज कर सकते हैं, या आप एम्परसेंड के साथ भी इसको जॉइन कर सकते हैं। तो देखते हैं तीनों बारी बारी से। सबसे पहले हम करते हैं कॉन्केटिनेट से। कॉन्केटिनेट से हमने ले लिया, यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम लिया, उसके बाद क्या चाहिए, हमें मोबाइल नंबर चाहिए। अब इन दोनों के बीच हमें क्या चाहिए, हाइफन चाहिए, तो हमने यहाँ पर हाइफन डबल कोटेशन में दे दिया, एंड कॉमा, देन हमें क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। मोबाइल नंबर के बाद सिर्फ अगेन कॉमा लगाएंगे हम, फिर हमें किसके साथ जॉइन करना है, हाइफन के साथ। देन हमें क्या चाहिए, लास्ट नेम चाहिए। लास्ट नेम के लिए हमने C2 का रेफरेंस दे दिया, राइट। अब इसको हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देन एंटर। तो ये क्या हुआ, नीरज, देन आपका मोबाइल नंबर आया, देन आपका लास्ट नेम आया, राइट। अभी हमने किया ये कॉन्केटिनेट से। अब हम इसको करते हैं, अब हम इसको करेंगे एम्परसेंड के साथ। एम्परसेंड के साथ कैसे करेंगे इसको, हमने नीरज का रेफरेंस लिया, देन हमने एम्परसेंड। Okay, now I think he's just repeating. Okay, you guys want to see the rest of it? I don't think this is necessary, right? ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। आज I think we are over time, but maybe I think I'll just stop right here today, ठीक है। We have already crossed our time. Next जो है write text, regex match and regex extract, ठीक है, ये करेंगे। और उसके बाद हम we will be left with some array formulas, ठीक है। Sum product and transpose, I think these 6 topics we can do next MIS Saturday. So I will throw the floor open for any questions if you guys may have, ठीक है ना। I think up till here was what we wanted to cover.
एनीथिंग विथ रिगार्ड्स टू दिस, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो संजीव सर का जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसको मे बी यू गाइस कैन सब्सक्राइब, यू विल गेट द वीडियो जनरली आज इवनिंग तक या फिर एट मैक्स कल मॉर्निंग तक ये हो जाता है। itpx.in/yt इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? Yes, so somebody asked me कि MIS का कोई अलग ग्रुप है कि नहीं। So basically we have a group for all DMEs, ठीक है ना। पर ये ग्रुप DME लोग के लिए है, this is not for business owners. So I am putting the group link in the chat. Just give me a second. Yes, Vigasji, I'm sharing the link. Just give me a second. We have so many links. ये डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी सर्च करना। सो आई फाउंड इट, आई एम जस्ट कॉपिंग इट एंड पेस्टिंग इट हियर। ठीक है, मैंने इसको अभी चैट पे डाल दिया है। तो ऑल डेटाबेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स more than welcome to join it. Should I put this on my screen also? Maybe what I'll do is I will put this in the description of the video. Okay, so this is basically the link that you need to view. Those of you who are watching it on YouTube, you'll probably find it in the description as well. Okay guys, thank you all for your time. Okay, I hope you all learned something new today. Any questions, parting comments, more than welcome. Thanks, Anna. You have been for the past few sessions, you have been very diligent and very patiently listening to every single thing. So really appreciate your coming here. Thank you. Okay. Bye guys. Take care. Good luck.